Hello students, welcome to Class Excellence. I am here with Class 11th Chemistry, Chapter 1, some basic concepts of chemistry. Okay, these notes are as per the revised NCERT syllabus. So, without wasting much time, let's begin with the chapter. See, here in this chapter, we will deal with what is chemistry and what is present in the chemistry, what you have to study inside the chemistry, the inorganic chemistry, organic chemistry, okay, which deals with carbon and its compounds. These things you are going to see here along with stoichiometry also, and some calculations, numerical based questions. So let's start. See, if we say define chemistry, how will you define this? Chemistry, it is the branch of science which deals with study of matter, its composition, structure, properties and the changes it undergoes. The matter already you have studied in your lower classes, 9th, 10th classes. What is matter? Okay, what are atoms, what are subatomic particles? All these things you have dealt in your lower classes. So same thing, same revision we are going to do it here in this first chapter of chemistry. So chemistry is all around us. Everything in our surroundings is made up of matter, and chemistry explains this matter. So branches of chemistry, see here, there are 5 branches of chemistry. The physical chemistry, which deals with physical properties and laws of chemical systems. Inorganic chemistry, which deals with the study of inorganic compounds like metals, non-metals, minerals, salts, acids, bases, all these type of things, compounds you are going to study in your inorganic chemistry. I think your book is also divided into 2 books, part 1 and part 2. Part 1 where you are going to study about inorganic chemistry, and part 2 is about completely organic chemistry. So organic chemistry, it deals with the study of carbon compounds like living and non-living things. Okay, like your aldehydes, alkanes, all these things you are going to study in your organic chemistry. Biochemistry, this deals with the chemical process in living organisms. And the final is analytical chemistry, which deals with separation, identification and estimation of the substances. So scope or importance of chemistry, you see, there is scope of chemistry in our daily life also. It is on the basis of many industries like pharmaceutical, fertilizers, plastics, paints, textile, cosmetic. All these industries, they give importance to chemistry, and this chemistry helps in understanding the composition and behavior of matter. It is essential in medicine, pharmaceutical companies. The discovery of new drugs and treatments improves the quality of life, better food, clean water and pollution control. Chemistry plays a very important role in research, technology and innovation. Always connect chemistry concepts with your daily life examples. It will help in better understanding and scoring high marks. So chemistry is not just a subject, it is a key to understand the world around us. See, let's start with nature of matter. You already know what is matter. Matter is anything that has mass and occupies space. So मास मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ स्टफ इन दैट ऑब्जेक्ट. ओके, कुछ है, कुछ प्रेजेंट है, तुम्हारा वेट, उस मास, वो मास होता है. वेट थोड़ा अलग है. मास, मास मतलब कुछ तो है, कुछ क्वांटिटी है, अमाउंट है, मेजरमेंट है. स्पेस, इट इज़ द वॉल्यूम विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट. इट इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूम or space. Okay, so characteristics of matter. Matter has mass in it. Matter occupies space. Matter is made up of tiny particles. Okay, so atoms, and in atoms further it is divided into subatomic particles. Particles of matter are in constant motion, and there is space between the particles of matter, and particles of matter, they attract each other. These particles are too small to be seen even with the most powerful microscope. So let's see what is particle nature of matter.
all matter is made up of extremely tiny particles, and these tiny particles, they are called as atoms, molecules or ions, and these particles are in constant random motion in the space. There is a space between the particles. Okay, इफ़ मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, ऐसे पार्टिकल्स है तो इधर कुछ स्पेस रहता है, ये स्पेस रहता है इधर, उसके बेसिस पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैशियस ऐसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसको. See examples to understand particle nature. First is diffusion of perfume, जो तुम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हो. स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स थ्रू आउट द रूम. जैसे ही तुम लोग उसको अप्लाई करोगे क्या होगा, स्प्रे करोगे, स्मेल ऑफ द परफ्यूम विल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम. क्यों, रीज़न क्या है, पार्टिकल्स ऑफ दिस परफ्यूम दे मूव रैंडमली एंड मिक्स विद द एयर पार्टिकल्स. उसमें कुछ स्पेसेस रहता है ना, उधर जाके ये पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं. इसके वजह से ये smell of the perfume, you can smell it. Okay, so dissolving of sugar in water, sugar it disappears or dissolves in water when stirred, or salt. Okay, sugar particles they fit into the spaces between the water particles, और ये क्या हो जाते हैं, अपने आप dissolve हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. Compression of gases, that is gases can be easily compressed. These gas particles are far apart and there is a lot of empty space between them. इसीलिए उसको हम लोग कंप्रेस करके यूज़ करते हैं. जैसे कि तुम्हारा CNG गैस, LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. ओके, ये सभी तुम लोग सिलेंडर में यूज़ करते हो, कंप्रेस करके यूज़ करते हो. ये कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है. सो द नेचर ऑफ मैटर कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्टिकल्स. याद रखो, वो था पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर. नाउ हाउ डू वी क्लासीफाई द मैटर? सी, अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर मैटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज. कौन से आते हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स आता है. सो ऑल द सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड एज मैटर. ओके, एंड दे आर मेड अप ऑफ मैटर. They exist in different forms and they can be classified as elements, compounds and mixtures. देखो तीनों का देखते हैं हम लोग क्या क्या है करके, एक पढ़ते हैं वन बाय वन. एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे आर द प्योर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स आर व्हाट? प्योर सब्सटेंसेस एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मीन्स, एंड दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. एक ही टाइप ऑफ एटम रहता है. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आयन, ये याद रखो, Fe मतलब आयन है, आयन. Cu मतलब कॉपर, अल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हीलियम, ये एलिमेंट्स है. एक सिंगल एलिमेंट का एक सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं और इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय केमिकल मीन्स. ओके, ये था एलिमेंट्स. हियर नेक्स्ट कंपाउंड्स क्या होता है देखते हैं. कंपाउंड्स अगेन दे आर प्योर सब्सटेंसेस. दे आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ओके, बाय वेट, that is called as compounds and they can be broken down into elements by chemical means. उसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग. जैसे कि H2O को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो 2 कंपाउंड्स में ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन. ओके, तुम्हारे लोअर क्लासेस में तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन. तो ये हम लोग इसको बाय केमिकल मीन्स इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. बट कंपाउंड्स होते क्या है? दे आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेस बट दे आर फॉर्म्ड बाय 2 or more elements, combining of 2 or more elements together in a fixed ratio or fixed proportion. Example water, carbon dioxide, sodium chloride, ammonia, ये सभी तुम्हारे compounds है. Next आते हैं mixtures में. ये एक टाइप ऑफ मैटर है. ओके, मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली एंड मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन. देखो रैंडम प्रोपोर्शन में मिक्स किया है. कंपाउंड्स क्या था? डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किया था. एंड दिस मिक्सचर्स दे आर द कंपोनेंट्स दैट रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. लास्ट ईयर चैप्टर था तुम्हें, ओके, प्योर सब्सटेंस सेपरेशन वाला चैप्टर. उसमें तुमने देखा था डिस्टिलेशन,
ये सभी प्रोसेस थे ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, सेडिमेंटेशन, ये सारे तुम्हें इस फिजिकल मेथड से इसको मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो. एग्जाम्पल एयर, सॉल्ट सोल्यूशन. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेरियस गैसेस. सॉल्ट सोल्यूशन, ओके, सॉल्ट एंड वाटर. सैंड प्लस आयरन फिलिंग्स, ये सभी तुम्हारे मिक्सचर्स के अंदर आते हैं. समझ में आया? हियर इन रिमेंबर सी आई हैव रिटन डायमंड एंड ग्रेफाइट, दे आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन and elements exist as atoms. Their elements also they exist as atoms. याद रखो, डायमंड और ग्राफाइट क्या है? कार्बन कंपोनेंट है. डायमंड हार्डेस्ट मेटल, सॉरी हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है एक्चुअली. कार्बन नॉन मेटल है ना, हार्डेस्ट नॉन मेटल. और ग्राफाइट इट इज बीइंग अ नॉन मेटल, कार्बन बीइंग अ नॉन मेटल, इट इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करके यूज़ करते हैं हम लोग. सो वाटर इज ऑलवेज H2O, दैट इज 2 parts ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 part ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम ऑफ गैसेस और बाय मोल्स. आगे पढ़ेंगे हम लोग मोल्स क्या है करके स्टोइकियोमेट्री में. ओके, सो नो केमिकल चेंज अकर्स इन मिक्सचर्स एंड ईच कंपोनेंट दे रिमेन अनचेंज्ड. याद रखो. Here matter मैंने further इधर classify किया है same elements, compounds and mixtures. See elements मतलब single type of atoms होता है, compounds मतलब fixed proportion में रहता है but chemical combination में रहता है. जैसे कि water 2:1 ratio में combine होता है. Mixtures they are variable proportion, इधर proportion या रेशियो वेरिएबल रहता है एंड बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन रहता है. ये दे कैन बी सेपरेटेड, ओके, बाय फिजिकल मीन्स. नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं देखते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन. प्रॉपर्टी, एक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी विच इज ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल इधर आइस, बॉइलिंग पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सारे तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो दिखता है हमें, ओके, विच वी कैन ऑब्जर्व और वी कैन मेजर. बॉइलिंग पॉइंट गरम मतलब इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होता है. आइस फ्रीजिंग, दिस थिंग, ओके, ये सभी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है. एग्जाम्पल्स में देखो, कलर, कलर विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, color, density, boiling point, hardness, conductivity that is heat or electric conductivity, states that is solid, liquid, gas, solid, ice solid है ना, दैट इज सॉलिड, ओके, वाटर कन्वर्ट होगा तो लिक्विड हो जाएगा. नेक्स्ट ऑर्डर टी, दैट स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, ये सारे तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं. ओके, इन फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस बट केमिकल कॉम्पोजिशन इट रिमेन्स सेम. नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी. दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज. ये कब ऑब्जर्व होता है हमें? ओनली व्हेन दैट कंपाउंड अंडरगोज केमिकल चेंज, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन में पता है ना, आयरन इट combines with oxygen and water to give iron oxide, reaction with acid, ये सारे तुम्हारे केमिकल चेंजेस है और इसमें हमें क्या दिखता है? केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड दीज आर कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज. ये ऐसे वाले प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं. एंड इन अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज. याद रखो एग्जाम्पल जैसे कि रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बेस एक्सेट्रा. कंबस्टिबिलिटी, एबिलिटी टू बर्न, दैट इज बर्निंग ऑफ पेपर. कोरोसिवनेस, रस्टिंग होता है, ओके. स्टेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, एबिलिटी टू अंडरगो केमिकल रिएक्शंस, ये सारे तुम्हारे केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं. Let's see the difference between physical and chemical properties. See, by definition we know the properties that are observed or measured without changing chemical composition is called as physical property, whereas a substance when it undergoes a chemical change
that property which is observed is called as a chemical property. Okay, and in physical property there is no chemical change, whereas in chemical property chemical change occurs. In physical property no new substance is formed, whereas in chemical property new substance is formed with new chemical properties. Physical property, again, it is generally reversible. We can just reverse it, okay, like melting of ice. Okay, again we can freeze it back to make ice. Next, in chemical property it is generally irreversible. Physical properties में क्या क्या आता है? कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी आते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी, कंबस्टिबिलिटी, कोरोसिवनेस, टॉक्सिसिटी, these all things come. Next, physical property, it is observed by physical observation or measurement, whereas chemical property it is seen through chemical reaction or certain experiments. Physical property it do not affect any identity of the substance, जैसे है वैसे ही रहता है, वो सेम रहता है उसमें जो भी प्रॉपर्टीज है. whereas chemical property it affects the identity of substance, वो जो प्रेजेंट था, मतलब जैसे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन एक बताती हूँ मैं, कुछ रिएक्टेंट्स जो रहते हैं वो कम्प्लीटली चेंज होके क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट्स बन जाते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ. ओके, तो ये प्रोडक्ट्स और ये रिएक्टेंट्स मैच नहीं होते हैं, इन सब दोनों का प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाता है. सो इट अफेक्ट्स द, ये जो आइडेंटिटी है जो सब्सटेंस का वो टोटली कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. समझ में आया? ये है तुम्हारा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी. So next, coming to physical change and chemical change. See, the changes which occur in our surroundings, these changes are called as these changes can be classified as physical change or chemical change. So physical change means the changes in which only physical properties such as like your size, shape, state, etc. gets changed, and there is no formation of any new substance. Generally reversible changes are mainly physical changes. They can be reversed back. Okay, physical changes, and these changes they involve less energy or no energy. Example, melting of ice, breaking of glass, boiling of water, dissolving of sugar in water, ये सभी तुम्हारे physical change होते हैं. Whereas chemical change में क्या होता है? A new substance is formed with different properties, that is called as products, and chemical composition of matter also changes. Generally they are irreversible changes, okay, which cannot be reversed back, and these changes they involve more energy. Example, rusting of iron, burning of paper, cooking of food, all these come under your chemical change. Souring of milk. Okay, इधर मैंने कंपैरिजन किया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, टेबुलर फॉर्म में दिया है. देखो, फिजिकल चेंज इवनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, वेयर एज इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, एंड composition wise physical changes it does not have, there is no change in the chemical composition, whereas in chemical changes there is a change in the chemical composition. Okay, less energy is used in physical change, whereas more amount of energy is involved in chemical change. Generally reversible रहता है physical change, whereas chemical change irreversible रहता है. Okay, with examples दिया है मैंने. ये था physical change, chemical change. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा हमने. नेक्स्ट आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में. मैटर दे एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, हमें पता है ऑलरेडी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर. So that is the physical state of a substance depends on the kinetic energy of the particles. जो movement होता है particles का, okay, उसके ऊपर depend होता है physical state, and intermolecular force of attraction between these particles. So on the basis of physical state there are 3 states of matter. One is solid, other is liquid, and the last one is gas. So solid मतलब क्या है? ये already तुमने तुम्हारे lower classes में पढ़ा है, just brushing of the things, okay, which you have studied in your earlier classes. So solid it has definite shape and volume. इधर मैंने figure दिया है, देखो, particles are closely packed
इधर दिख रहा है ना, क्लोजली पैक्ड है, मिनिमम स्पेसेस है. स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. वेरी स्मॉल स्पेसेस इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स. ये है तुम्हारा सॉलिड. वेर एज लिक्विड मतलब इधर देखो, हियर स्मॉल अगेन स्मॉल स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज प्रेजेंट. वेरी स्मॉल नहीं है, थोड़ा स्पेसेस है. एंड इट हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप. ओके, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्रेजेंट. पार्टिकल्स आर क्लोज बट नॉट इन अ फिक्स्ड पोजिशन. वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. याद रखो, ये है तुम्हारा फिगर. पार्टिकल्स कैसे रहते हैं करके. गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं, नो डेफिनाइट शेप एंड नो डेफिनाइट वॉल्यूम. पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड देयर इज अ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स they have very weak intermolecular force and particles move in random direction. याद रखो. ओके, गैस पार्टिकल्स और मोर स्पेस रहता है, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस रहता है उन सभी के पार्टिकल्स के बीच में. ये है तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड, गैस का पार्टिकल अरेंजमेंट. फिगर में दिया है देखो. इधर मैंने वापस टैबुलर कॉलम में दिया है सेम थिंग जो भी अभी मैंने बोला. इट इज़ अ कंपैरिजन टेबल शोइंग द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जस्ट गो थ्रू दिस or take a screenshot of this. Okay, you already know this all things. It is not new to you people. Next, SI system of units. SI stands for Lee System International the Units. It is an internationally accepted system of units based on a set of fundamental units. So fundamental units, derived quantities. Okay, दो है. एक fundamental basic quantities रहते हैं, दूसरे रहते हैं derived quantities जो fundamental quantities basic quantities से derive किया है divide या multiply करके. That is fundamental quantities कौन से होते हैं हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में. द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग में. ओके, तो ये हमारे 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं. लेंथ होता है जिसका एसआई यूनिट मीटर है, सिंबल भी दिया है मैंने. मास मेजर्ड इन किलोग्राम्स, टाइम मेजर्ड इन सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स में भी होता है. बट एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट इसका सेकेंड्स होता है, याद रखो टाइम का. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए करके लिखते हैं. थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट केल्विन, के बोलते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स, ओके, MOL. luminous intensity, that is candela, CD. Okay, these are your fundamental or basic 7 basic fundamental units. Physics के first chapter में भी है, same things is present in your physics chapter as well. Okay, nothing new to you people. So next you see derived quantities, the physical quantities which are expressed in terms of fundamental quantities, they are called as derived quantities. Examples हम लोग देखेंगे थोड़े. एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर होता है. ओके, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल के केस में. तो इसका जो ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर्स बोलते हैं, मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबॉइड के केस में या क्यूब के केस में इधर साइड क्यूब होता है या लेंथ क्यूब होता है. ओके, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब. डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला kg पर मीटर क्यूब, इसको ऐसे लिखते हैं देखो, kg m के ऊपर -3 kg पर मीटर क्यूब. ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वो डिनोमिनेटर में है करके. स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन स्पीड बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट फोर्स इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA. पढ़ा है ना तुमने फिजिक्स में, F इज इक्वल टू MA, मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स या फिर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है. नेक्स्ट, प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला है.
फोर्स हमें ऊपर से मिला, फोर्स बाय एरिया हमारा प्रेशर होता है। ये सभी को डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, क्योंकि एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी को डिराइव किया है। ओके, ये बेसिक क्वांटिटीज नहीं है। सो इसका प्रेशर का क्या है देखो, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग कैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का सभी सिम्बॉल्स, एसआई यूनिट कैसे क्या होता है करके। इधर हम लोग जस्ट थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज देखते हैं। ओके, एनर्जी वर्क दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जूल्स में मेजर करते हैं या न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं। वर्क और एनर्जी दोनों सेम होते हैं। So these were your derived quantities and fundamental, basic 7 fundamental quantities. So SI prefixes they are used with SI units to denote very large or very small quantities. जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 10 टू पावर n, देखो 10 टू, ये पॉजिटिव होता है 10 टू पावर n, ये मल्टीपल्स। ओके, सब मल्टीपल्स 10 टू पावर -n नेगेटिव साइन के साथ जब हम लोग देखते हैं तो पॉजिटिव में कौन से आते हैं देखो, टेरामीटर, गीगामीटर, मेगामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सभी होता है। टेरा मतलब 10 टू पावर 12 होता है। इधर देखो ऊपर मैंने दिया है, जस्ट आई विल जूम दिस, सी टेरामीटर, 1 टेरामीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 12 मीटर, 1 गीगामीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 9 मीटर। मेगामीटर मतलब कैसे लिखा है देखो, कैपिटल एम स्मॉल एम। ओके, स्मॉल एम मतलब मीटर होता है और वो उसका सिंबल रहता है कैपिटल एम। इधर दिया है मैंने, सिंबल्स आई हैव शोन इट हियर। एंड मल्टीप्लायर, किससे मल्टीप्लाई किया है, डेका 10 टू पावर 1, हेक्टो 10 टू पावर 2, किलो 10 टू पावर 3, मेगा 10 टू पावर 6। ये सारे तुम्हारे प्रीफिक्सेस के केस में यूज़ करते हैं बिगर क्वांटिटीज़ के लिए। वेयर स्मॉलर क्वांटिटीज़ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं देखो, here decimeter. Okay, 1 decimeter is equal to 10 to power -1 meter. Centimeter 10 to power -2 meter. Millimeter 10 to power -3 meters. देखो इधर मैंने दिया है, एक्सप्रेशन भी दिया है उसका, मिलीमीटर से मीटर में कैसे एक्सप्रेस किया करके। माइक्रो ऐसे लिखते हैं। ओके, 10 टू पावर -6, नैनो, पिको, ये सभी आता है। एंगस्ट्रॉम भी आता है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू पावर -10 होता है, 10 मीटर्स। ओके, ये सारे तुम्हारे सब मल्टीपल्स होते हैं। गॉट? So SI system provides uniformity and convenience in scientific communication. याद रखो, ये कुछ हमारे सफिक्स थे जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये सभी तुम्हें बेसिक साइंटिफिक नोटेशन के लिए सभी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इधर कैलकुलेशन के टाइम में सभी क्या होता है, कैलकुलेशन में वो लोग तुम्हें नॉर्मली किलोमीटर या फिर माइक्रोमीटर इस टर्म्स में देते हैं। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फर्स्ट एसआई यूनिट, न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स मेनली तुम्हें फर्स्ट एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके देन यू हैव टू स्टार्ट द सॉल्विंग ऑफ आंसर। उससे पहले तुम लोग सॉल्व करोगे ना, यू विल रिजल्ट इन रॉन्ग आंसर। ओके, याद रखो। सो मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। याद रखो, मेजरमेंट हम लोग देखो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, दो टाइप्स रहते हैं। एक्यूरेसी इट रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू और द एक्सेप्टेड वैल्यू। एक हम लोग जो वैल्यू ट्रू वैल्यू रहता है या एक्सेप्टेड वैल्यू रहता है, उससे कितना क्लोज हमारा आंसर लाई करता है मेजर्ड वैल्यू, वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। ओके, एंड हाई एक्यूरेसी मीन्स द रिजल्ट इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब तुम्हारा आंसर एक्यूरेट है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, एक्यूरेट है मतलब वो एग्जैक्ट नहीं, एक्यूरेट है, 100% उसके नियरली या क्लोजली लाई कर रहा है ट्रू वैल्यू से। एग्जाम्पल देखो, इफ़ द एक्चुअल मास ऑफ द सैम्पल इज 2.5 grams and if we are measuring 2.51 grams, that means the measurement is accurate। 0.01 ग्राम्स का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूरेसी। नेक्स्ट आता है प्रिसीशन। प्रिसीशन क्या होता है, इट रेफर्स टू हाउ क्लोज द रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। बार बार हम लोग जब एक
एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो हर बार कितना एक्यूरेट या कितना क्लोज आता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीशन. ओके, repeated measurements are close to each other. How close they are to each other, that is high precision means the results are consistent and reproducible. मतलब बार बार रिपीटेडली तुम लोग नियर टाइट्रेशन के केस में मेनली तुम्हारा एक्सपेरिमेंट होता है फर्स्ट टाइट्रेशन. वो टाइट्रेशन केस में तुम लोग क्या करते हो, बार बार रिपीट करते हो एक्सपेरिमेंट. तुम लोग देखते हो कि नियर बाय वैल्यू आ रहा है क्या नहीं करके, तो वो तुम्हें प्रिसीशन है तुम्हारा. ओके, इफ़ द मेजरमेंट्स दे आर रिपीटेड एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर. लाइक एग्जांपल दिया देखो 2.48 ग्राम्स, 2.49 ग्राम्स, 2.50, 2.49, दीज ऑल आर योर प्रिसाइज्ड थिंग्स. ओके, इसको हम लोग प्रिसाइज्ड मेजरमेंट्स बोलते हैं. एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसाइज क्या है देखो, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज्ड. इधर अगर तुम लोग इधर मार्क किया है देखो, मैंने इधर दिखाया है देखो, अगर ये रेड डॉट के पास जाके है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोलते हैं. इधर ये सभी ब्लैक मार्क्स इधर क्या हुए हैं देखो, प्रिसाइज है, सभी एक जगह पे है, बट दे आर नॉट एक्यूरेट. वो रेड के पास नहीं है. ओके, इधर ये फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में दे आर टू क्लोज टू दैट रेड मार्क, मतलब एक्यूरेट भी थे. इधर सेकेंड केस में दे आर प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट. थर्ड केस में देखो एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज. ओके, आसपास आ रहे हैं बट प्रिसाइज नहीं है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे. दिस नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन देखो, दे आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज. एक्यूरेट भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है. ओके, दिस इज समथिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन. नेक्स्ट विल स्टडी एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, दैट इज सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, ग्रॉस एरर्स. ओके, सी ये सिस्टमैटिक एरर्स क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर्स मतलब दीज एरर्स दे अकर ड्यू टू फॉल्ट्स इन द इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है या मेथड जो यूज़ कर रहे हो वो ही रॉन्ग है, तभी ये सिस्टमैटिक एरर आते हैं, अकर होते हैं. एंड दे अफेक्ट ऑल द मेजरमेंट इन द सेम वे, आइदर ऑलवेज टू हाई और ऑलवेज टू लो. याद रखो, वो तुम्हारा एरर नहीं है, वो सिस्टम में ही एरर है, या फिर जो तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो ही रॉन्ग है, मेथड यूज जो कर रहे हो वो रॉन्ग है. दैट टाइप ऑफ एरर जब अकर होते हैं उसको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं. और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं जब तक हम लोग वो एरर का हम लोग पता नहीं लगाएंगे. ओके, दे कैन बी मिनिमाइज्ड बट दे नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड. हम लोग इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं कुछ इससे करेक्शन के वजह से. एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ बैलेंस, वेइंग बैलेंस तुम्हारा अगर करेक्टली कैलिब्रेट नहीं किया है तो इसमें एरर आ सकता है. या ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, रॉन्ग स्टैंडर्ड यूज्ड, जो तुम लोग यूज़ करते हो रॉन्ग स्टैंडर्ड है, तभी सिस्टमैटिक एरर अकर होते हैं. दे अफेक्ट द एक्यूरेसी, तुम्हारा जो एक्यूरेट आंसर मिलना चाहिए उसको वो अफेक्ट करता है, बट नॉट द प्रिसीशन. प्रिसीशन मतलब तुम्हें रिपीटेडली वो सेम आंसर मिलते रहेगा बट एक्यूरेट नहीं होगा. याद रखो, समझ में आया. दिस इज सिस्टमैटिक एरर्स. नेक्स्ट आता है तुम्हारा रैंडम एरर्स. दीज एरर्स दे अराइज फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्यों ये रॉन्ग आ रहा है करके. अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस रहता है एक्सपेरिमेंट करते वक्त. एंड दे कॉज द रिजल्ट टू स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन. दे अफेक्ट द प्रिसीशन बट कैन बी रेड्यूस्ड बाय टेकिंग मोर रीडिंग्स. ओके, प्रिसीशन रॉन्ग हो सकता है. टेम्परेचर चेंज, बार बार टेम्परेचर, तुम लोग एक्सपेरिमेंट बार बार डिफरेंट जगह पे कर रहे हो तो उधर क्या होगा, डिफरेंट रीडिंग्स आएगा तुम्हें, मतलब प्रिसीशन को अफेक्ट करता है. बट वी कैन रेड्यूस इट बाय टेकिंग मोर रीडिंग्स. दैट इज एग्जाम्पल. हाँ दिया है देखो, स्लाइड चेंज इन द टेम्परेचर चेंज होता है तो ये एरर अकर हो सकते हैं. या ह्यूमन रिएक्शन टाइम, हम लोग अभी टाइट्रेशन करते वक्त तो तुम्हें एग्जैक्टली पिंक कलर आना चाहिए. ओके, कॉनिकल फ्लास्क में, बट तुम लोग क्या थोड़ा लेट देखते हो या थोड़े पहले देखते हो, तो ये ह्यूमन एरर होता है तुम्हारा. फ्लक्चुएशन इन द रीडिंग, ये सभी तुम्हारे रैंडम एरर्स होते हैं. ओके, दे अफेक्ट द प्रिसीशन बट नॉट द एक्यूरेसी. एक्यूरेट आएगा, अगेन
बट प्रिसीशन थोड़ा चेंज होगा. Next, gross error. These errors they occur due to carelessness or human mistakes. Human made mistakes के वजह से errors होते हैं and they lead to completely wrong results. They can be avoided by taking proper care and proper technique. Example, wrong reading taken, spilled solution, wrong calculations. इसमें ये सभी तुम्हारे gross errors है. Okay, ये तुम लोग mistake करते हो calculation सभी करने के वक्त सभी human mistakes होते हैं. So these can affect both the accuracy as well as precision. दोनों को affect करता है. नेक्स्ट देखो, हाउ टू मिनिमाइज द एरर्स. हाउ वी कैन मिनिमाइज द एरर्स. देखा ना 3 एरर्स, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर. तो हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस एरर. सी, यूज वेल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड यूज एवरेज. जब तुम लोग रीडिंग लेते हो मल्टीपल ले लो, 4-5 रीडिंग एक साथ लो और उसका एवरेज निकालो तो तुम्हें थोड़ा एक्यूरेट आंसर आने का चांसेस रहेगा. फॉलो प्रॉपर टेक्निक एंड प्रोसीजर वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑल. अवॉइड पैरलेक्स एरर वाइल टेकिंग रीडिंग्स. ओके, पैरलेक्स एरर मतलब जब तुम लोग क्या करते हो, मेजर करते हो. मेजरिंग सिलेंडर का ही एग्जांपल लेती हूँ. मेजर करते हो, आई लेवल करेक्टली पैरेलल रखो. आई लेवल इट शुड बी करेक्टली पैरेलल. ऊपर नीचे देखोगे तो आंसर भी रॉन्ग रहेगा तुम्हारा. कीप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कांस्टेंट. बी केयरफुल एंड पेशेंट ड्यूरिंग डूइंग परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट. ओके, टू अवॉइड द एरर्स. नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में. सिग्निफिकेंट फिगर्स दे आर द डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस 1 डिजिट दैट इज एस्टिमेटेड. देखते हैं क्या है करके. फर्स्ट लेट्स see the rules. Okay, so all non-zero digits are significant. देखो all non-zero. एग्जाम्पल 2, 7, 8 कितने significant figures है इधर. तीनों हम लोग मेजर कर सकते हैं ना. so it has 3 significant measure. 2 can be measured, 7 can be measured, 8 can be measured. 3 significant figures. all non-zero digits they are always significant. याद रखो. next, zeros between non-zero digits आर सिग्निफिकेंट. जैसे कि 1 0 0 2 है, 2 0 है बट 1 और 2 के बीच में है, तो वैसे वाले ज़ीरोज़ को हम लोग सिग्निफिकेंट मान लेते हैं जब 2 नंबर के बीच में लाई होते हैं ज़ीरोज़. इसीलिए इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, कमेंट में बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. कमेंट द आंसर. नेक्स्ट, थर्ड, लीडिंग ज़ीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. लीडिंग ज़ीरोस मतलब क्या है. इधर देखो, ज़ीरो जो पहले आता है डेसिमल में जब यूज़ करते हैं हम लोग पहले लिखते हैं नंबर के पहले, तो वो ज़ीरोस दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो इधर 0.00 ये तीनों ज़ीरो हम लोग काउंट नहीं करते. सो इसमें 45 मतलब 4-5 जो है दैट इज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहता है. ओके, नेक्स्ट, ट्रेलिंग ज़ीरोस इन अ होल नंबर. ट्रेलिंग मतलब जो पीछे लगते हैं ज़ीरोस, जैसे कि 16,000 मैंने बताया, इसको ट्रेलिंग ज़ीरोस बोलते हैं, पीछे लगने वाले ज़ीरोस को. विथ इन अ होल नंबर, ये होल नंबर है. ओके, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. जैसे कि इधर देखो 1500, इधर दे हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब इधर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है दैट इज़ 1 and 6. ये तीनों ज़ीरो को हम लोग काउंट नहीं करते. इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में 16 × 10⁻³ करके ऐसे लिखते हैं. तो ये सिर्फ ये उतना ही तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा. ओके, बट सॉरी, हाँ, but see 1500 it has 4 significant here. अगर मैंने इधर ऐसे पॉइंट बताया, इधर पॉइंट डाला, तो इसमें क्या होता है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ट्रेलिंग ज़ीरोस इन अ होल नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट. ओके, अगर डेसिमल पॉइंट इसमें आ गया तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. अगर डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. समझ में आया. नेक्स्ट, ट्रेलिंग ज़ीरोस इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट. इधर देखो,
ट्रेलिंग जीरोस इन अ डेसिमल नंबर, दे आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल नंबर है, इधर भी सेम था, इधर डेसिमल बताया था, ये 4 सिग्निफिकेंट बताया था। इसमें देखो 1 2 3 4 ये जीरोस को काउंट करते हैं हम लोग, ये ट्रेलिंग जीरोस को। सो दिस हैज 4 significant figures. Exact numbers counted items have infinite significant figures, that is 12x. Okay, exact numbers या counted items जो भी रहते they have infinite significant figures. 24 students, ये तुम्हारे infinite significant figures है। नेक्स्ट इसमें देखो राउंडिंग ऑफ रूल्स। राउंडिंग ऑफ मीन्स रिप्लेसिंग अ नंबर बाय एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैविंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कीप ऑल द डिजिट्स अप टू रिक्वायर्ड प्लेस। मैं बताती हूँ इसमें क्या है। अगर इसमें मुझे दिया 15.5678 ऐसे, इधर 15.5 ये 5 है, राउंड ऑफ टू 1 डिजिट करके बोला। ओके तो ये 5 को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो इसके नेक्स्ट डिजिट को देखो 6 है। नेक्स्ट बाय चांस इफ़ इट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन 5 होता है, देन इंक्रीज द लास्ट रिटेन्ड डिजिट बाय 1। इसको हमें क्या करना है, 6 है ना, ग्रेटर देन 5 है मतलब +1 करना है। तो ये वाला नंबर क्या होगा हमारा, +1 होगा, 15.6 हो जाएगा। समझ में आया। अगर बाय चांस इधर 15.523 ऐसे था तो इसको हमें इधर राउंड ऑफ करना है। तो इसके नेक्स्ट डिजिट को देखो, ये 2 है, लेस देन 5 है, देन ड्रॉप इट मतलब ये 5 को क्या करना है, -1 करना है, ड्रॉप करना है 15.4 ऐसे। समझ में आया, ड्रॉप करना है। सो इफ सपोज उधर 0 1 2 3 4 तुम्हारा नेक्स्ट डिजिट है, देन ड्रॉप द डिजिट बाय 1 एंड 5 6 7 8 9 है तो इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट बाय 1। समझ में आया। Sorry, drop the digit, like you should not change the value, okay, that value should remain same, it should be 15.5 only. Sorry, I just subtracted it to 1. हाँ, इधर एग्जाम्पल्स दिया है, देखो ओरिजिनल नंबर दिया है तुम लोगों को और राउंडिंग ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट मतलब 4 5, इधर 2 सिग्निफिकेंट कौन सा रहेगा, देखो 5 रहेगा। सॉरी, rounding off to 2 significant figures, 2 significant 23. Okay, so this is your 3 is the significant figure, rounding off to 2 significant figure। नेक्स्ट नंबर को देखो कौन सा है, 4 है, तो एज इट इज़ लिखते हैं 23। मैंने वो एग्जाम्पल में मैंने -1 किया, 5 को 15.4 लिखा मैंने, सॉरी वो रॉन्ग था, हाँ 15.5 ही आता है। नेक्स्ट डिजिट अगर तुम्हारा 0 1 2 3 4 है तो वो नंबर प्रीवियस नंबर को सेम एज इट इज़ लिखते हैं तुम लोग। जैसे कि इधर 4 था, 23 लिखा, देखो 3 लिखा। राउंडिंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 मतलब अभी 4 को हमें देखना है। नेक्स्ट नंबर डिजिट देखो 5 है तो क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 23 ये 4 को +1 करना पड़ेगा, 23.5 हुआ। नेक्स्ट राउंडिंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 5, ये 5 को देखना है, 4th सिग्निफिकेंट फिगर मतलब। नेक्स्ट नंबर डिजिट को देखो 6 है मतलब क्या करना है तुम्हें, 5 से बड़ा है तो यू हैव टू ऐड 1 to 5, ओके, दैट इज 23.46 हुआ। ये है तुम्हारा राउंडिंग ऑफ मेथड। इसमें ये भी देखो तुम लोग कैसे कर रहे हैं करके, राउंडिंग टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका कुछ वैल्यू नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इधर सेकेंड सिग्निफिकेंट मतलब इधर ये होता है 5 होता है, तो इसका नेक्स्ट डिजिट देखो। नेक्स्ट राउंडिंग टू 3 सिग्निफिकेंट मतलब 6 को देख के करना है, ओके ऐसे। सेम वे में नेक्स्ट 7.8952 वो भी वैसे ही किया है। तो इधर ये देखो 1.1498 राउंडिंग ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1498 है ना, 2 सिग्निफिकेंट मतलब इधर राउंड ऑफ करना है। तो क्या किया 1. इधर नेक्स्ट नंबर देखो, डेसिमल है तो आराम से कर सकते, ये डेसिमल नहीं है, सिंस ये डेसिमल नहीं है तो इसको हमें डेसिमल फॉर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या होगा, इधर 1.5, इधर देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आया और जो बचा था उसको हमें 10 to power 3 करके लिखना है, ओके। इधर हमने डेसिमल डाला 1 2
3 इधर जाके डाला हमने, इसीलिए 10 टू पावर 3। समझ में आया? ये है तुम्हारा राउंडिंग टू 2 सिग्निफिकेंट। एक ज़ीरो ऐड करो तो राउंडिंग टू 3 सिग्निफिकेंट होगा, और एज इट इज़ लिखो और राउंड ऑफ करो इंटू 10 टू पावर 3 डाल के राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। समझ में आया? सो डू कैलकुलेशंस विथ ऑल द डिजिट्स एंड राउंड ऑफ द फाइनल आंसर। जो भी आता है तुम्हें फर्स्ट कैलकुलेशन करो और फाइनली जाके राउंड ऑफ करो। पहले ही राउंड ऑफ करके मत बैठो कि आंसर रॉन्ग आ जाएगा। फाइनल लास्ट आंसर जो आता है उसको जाके राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर में ज़्यादातर तुम्हें कैलकुलेशंस बहुत है। ओके, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन, ये सभी तुम लोग जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या करना है, जो आंसर आता है लास्ट में जाके राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मोर डिजिट्स इन कैलकुलेशन मीन्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। जैसे तुम लोग पॉइंट में अगर इधर देखो 14.567 ऐसे रखोगे तो तुम्हें आंसर और एक्यूरेट मिलेगा। अगर इसको पहले ही तुम लोग राउंड ऑफ कर दोगे, 14.5 करोगे, 14.6 होगा ये राउंड ऑफ किया तो इधर, तो आंसर तुम्हें रॉन्ग भी आ सकता है, थोड़ा हायर रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले राउंड ऑफ मत करो। समझ में आया? यू जस्ट राउंड इट ऑफ आफ्टर फाइंडिंग द फाइनल आंसर। इधर भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, देखो मेजर्ड वैल्यू, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने कैलकुलेट किया है। यू जस्ट गो थ्रू दिस एंड एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने इधर, क्या है रीज़न इसके पीछे। ओके, जस्ट सॉल्व दिस इफ़ यू वांट, जस्ट सी। Next, coming to scientific notation or standard form. It is a way of writing very large or very small numbers in a compact and easy form. Standard form कैसे लिखते हैं? देखो, एक नंबर का हम लोग, एक नंबर दिया है तो उसको, उसका जो कोएफिशिएंट है 1 से 10 तक जो लाई होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, ए बोलते हैं, इंटू 10 टू पावर n, कितना नंबर से उतना। 10 एक बेस मान के चलते, n एक्सपोनेंशियल नंबर है, इट इज़ एन इंटीजर। ओके, याद रखो, इट इज़ एन इंटीजर। सो n इज़ पॉजिटिव फॉर लार्ज नंबर्स एंड n इज़ नेगेटिव फॉर स्मॉलर नंबर्स। ये ऑलरेडी हमने उधर पढ़ा था ना, सफिक्स ऐड करते वक्त, टेराबाइट, उसमें सभी पढ़ा था हमने। ओके, गीगाबाइट, डेसीमीटर, मिलीमीटर, ऑल दोज थिंग्स। Here same thing it is. If a number is larger, you can express the number as a into 10 to power n, and if a number is smaller, 10 to power minus n आता है। ओके, 10 to power minus n लिखते हो तुम लोग, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर रहता है। नेक्स्ट, कन्वर्शंस देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म टू ऑर्डिनरी फॉर्म। इफ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, move decimal point to the right by n places. ओके, एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, इधर दिया है मैंने एग्जाम्पल, देखो 345000। तो क्या किया है, पॉजिटिव है तो डेसिमल प्लेसेस इधर से हमें उस तरफ लेके जाना है, राइट बाय n प्लेसेस, 1 2 3 4 5, इधर लिया हमने 3.45 इंटू 10 टू पावर 5 आएगा ऐसे। नेक्स्ट, अगर here if exponent is negative exponent है तो move the decimal point to the left side. ओके, ऐसे लेफ्ट साइड में करना है, 1 2 3 ऐसे शिफ्ट करना है। समझ में आया? जस्ट गो थ्रू दिस एग्जाम्पल्स। ओके, A part is standard form to ordinary form and B part is ordinary form to standard form. How we have to write it in a scientific notation form. See, these are examples I have given to you. 7.2 into 10 to power 4. Standard से हमें ऑर्डिनरी फॉर्म से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिखते हैं 7.2 इंटू 10 टू पावर 4। मतलब क्या करना है, 7.2 हमें ज़ीरोस प्लेस करना है और ऐसे शिफ्ट करना है। 4 है ना, +4 है, एक्सपोनेंट देखो +4 पॉजिटिव है, ऐसे शिफ्ट करो, 1 2 3 4 इधर आएगा। ओके, 7 2 3 zeros लाइक दिस। समझ में आया? नेगेटिव है तो लेफ्ट के तरफ शिफ्ट करो, 5.6 है, 10 टू पावर -3 है, देखो नेगेटिव है
तो इधर ऐसे नेगेटिव पे ज़ीरोस डालो, ऐसे शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में 1 2 3, आंसर क्या आएगा 0.0056, ये होगा तुम्हारा आंसर। समझ में आया? ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू जस्ट सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स, ओके। डोंट सी हियर कॉमन मिस्टेक, राइटिंग नंबर्स लाइक 12.3 इंटू 10 टू पावर 5 और 0.5 इंटू 10 टू पावर -4 इज इनकरेक्ट। ऑलवेज एडजस्ट सो दैट द नंबर लाइज बिटवीन 1 to 10, ओके। तो तुम्हारा नंबर जो नंबर है वो किधर लाई करना है, इधर देखो 3 है, 9 है, डेसिमल के पहले 6 है, 3 है, ओके। तो इधर जब तुम लोग लिखते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए जो है तुम्हारा इट शुड लाई बिटवीन 1 to 10। इधर 12.3 इंटू 10 टू पावर 5 दिया है ना, ये रॉन्ग है। ये क्या आना चाहिए 1.23 ऐसे आना चाहिए। समझ में आया? इधर 1 से 10 तक नंबर उतने ही रहने चाहिए, ये 12 ज़्यादा हो गया, ये 0 भी नहीं आ सकता है इधर। कितना रहना है? इन बिटवीन 1 to 10, दैट इज़ द करेक्ट वे। समझ में आया? नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस। Dimensional analysis is a technique. It is used to convert physical quantity from one unit to another using its dimensions. Okay, कुछ इधर हम लोग dimensions देखो, ये फिजिक्स में भी है तुम्हें, इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ और उसके डायमेंशंस दिया है देखो। दैट इज़ लेंथ, लेंथ को हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट L में लिखते हैं, मास स्क्वायर ब्रैकेट M में लिखते हैं, टाइम टेम्परेचर देखो टेम्परेचर टीटा होता है, ओके, टाइम कैपिटल टी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N कैपिटल N मोल्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर्स में लिखते हैं हम लोग ए करके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ओके जे करके लिखते हैं जिसका यूनिट कैंडेला है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इट रिमेन्स सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट यूज्ड, ओके। तुम लोग कुछ भी यूनिट यूज़ करो, जैसे कि लेंथ को तुम लोग मिलीमीटर यूज़ करो, किलोमीटर यूज़ करो, डेसीमीटर यूज़ करो, सेंटीमीटर यूज़ करो, बट हमेशा लेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज L, यही उसका डायमेंशन है। यूज टू कन्वर्ट यूनिट्स इजीली विदाउट नोइंग द फॉर्मूला। बाई चांस तुम्हें फॉर्मूला पता भी नहीं है तो हम लोग उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट्स में। वेरी यूजफुल इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। रिमेंबर एग्जाम्पल इधर दिया है देखो, एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो उसका इसका भी मीटर इसका भी मीटर, ओके। तो हम लोग लेंथ स्क्वायर L स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट डेंसिटी देखो, मास बाय वॉल्यूम, मास का हमारा m है, ओके, और वॉल्यूम हमें पता है कि L में मेजर करते हैं क्योंकि वॉल्यूम है लेंथ क्यूब, ऊपर दिया है L क्यूब है, ओके। और ये डिनोमिनेटर में है तो -3 आएगा। समझ में आया? जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में रहता है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ एक्सप्रेस करते हैं, याद रखो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी है, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर में, ओके। उधर से तुम लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। इधर मैंने 2-4 उतने एग्जाम्पल्स दिए। सो यूनिट कन्वर्शन मेथड, write the given value with its unit and write the unit you want to convert it to. So conversion factor use से multiply करो, that is divide unit by given unit। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया देखो, 25 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 25 किलोमीटर। फर्स्ट हमें किलोमीटर से डिजाइड यूनिट हमारा क्या है मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय हमारा गिवन यूनिट, क्या गिवन यूनिट है, किलोमीटर है। 1 किलोमीटर कितना आएगा हमारा 25 इंटू 1000 कितना 25,000 मीटर्स, ये आएगा, इंटू करना है, ओके। 25 इंटू 1000 दैट इज़ 25,000 किलोमीटर्स। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं तुम लोग कन्वर्शन फैक्टर लगा के। कैंसल आउट द यूनिट्स एंड राइट द फाइनल वैल्यू विद द डिजायर्ड यूनिट। नेक्स्ट कन्वर्जन फ्लो चार्ट सेम है, वही है जो मैंने अभी बताया ना तुम्हें कैसे करना चाहिए, वैसे जो दिया है नंबर इन विच यू हैव टू कन्वर्ट इट, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई इट इनटू किलोमीटर से मीटर 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय द गिवन यूनिट। गिवन यूनिट क्या है उसका, किलोमीटर है। किलोमीटर कट करो, डिलीट करो एंड फाइनली तुम्हें आंसर 25,000 मीटर्स मिलेगा।
ये है। नेक्स्ट आते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सी द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर अ सेट ऑफ फंडामेंटल लॉस और रूल्स, लॉस मतलब रूल्स होते विच explains how elements they combine with each other to form compounds, and these laws they were discovered by different scientists through their experiment and observations in the 18th to 19th century. So these laws they form the basis of the modern chemistry and help us to understand the composition of the substances. So what are these laws? They are the general truth, or they are the general rules which describe the manner in which elements combine in definite proportion by mass to form the compound. What are the importance of these laws? See, they help in understanding how elements they react and combine to form new substances. They provide the foundation for stoichiometry, mole concept, and for perfectly balancing a chemical equation. They are essential for calculations in chemical reactions and industrial process like calculation of molality, all those things. They help in predicting the products of reactions and understanding the conservation of matter. समझ में आया? ये है इसके कुछ importance ये लॉस के। तो हम लोग वन बाय वन हम लोग लॉस देखेंगे। फर्स्ट लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट स्टेटमेंट सेज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, देखो रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्ट करते हैं, इधर कितने जो भी प्रेजेंट है इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और फाइनली जब हमारे वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट्स मिलेगा। ये रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। याद रखो, तो स्टार्टिंग में हमने कितना ग्राम्स, कितना वेट ऑफ रिएक्टेंट्स लिया था, कितना मास लिया था ना रिएक्टेंट्स का, फाइनल में भी उतना ही हमें मास मिलेगा प्रोडक्ट के साइड में। समझ में आया? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। याद रखो। नेक्स्ट, during a chemical reaction atoms of the reactants they combine, they break or they get rearranged to form the product, but no atom is created nor destroyed, therefore the total mass remains constant. इधर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा। देखो 2 mg प्लस फर्स्ट रिएक्शन ऐसे रहता है, mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस देखो, इधर ऑक्सीजन 2 है इस तरफ, इधर 1 ही है, तो हम लोग 2 डालते हैं। mg हमारा 2 हुआ तो इधर भी 2 डालते, 2 mg प्लस O2 हुआ। ओके, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इस तरफ देखते हैं हम लोग कितना है। mg का देखो, mg का मास होता है 24, इस तरफ इधर लिखती हूँ 24 इंटू कितने mg है? 2 है, प्लस और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है एक ऑक्सीजन एटम का। तो इधर कितने एटम्स है? 2 है, 2 इंटू 16। ओके, ये 32 आएगा, ये 48 आएगा। ऐड करोगे तो कितना आएगा तुम्हें? 80 ग्राम्स आएगा। सेम इस तरफ देखो, 2 इंटू mg का कितना है? 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। 2 इंटू 24 प्लस 16 करो, 40, दैट इज़ 80 ग्राम्स। फाइनल में भी देखो कितना है? 80 ग्राम्स। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जितना पहले रिएक्टेंट्स में मास था तो उतना ही मास हमें प्रोडक्ट साइड भी दिख रहा है। समझ में आया? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सेम वे में मैंने और एक रिएक्शन का दिया है, देखो CaCO3 हम लोग थर्मोलिटिकल डिकम्पोजिशन करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यू जस्ट कैलकुलेट इट, आइडेंटिफाई करो कि वो रूल बिहेव करता है, लॉ बिहेव करता है कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेगा वो बिल्कुल। ओके, जस्ट यू ट्राई इट। And this law is the foundation of all the chemical calculation. Next, coming to law of constant proportion. See, the statement says this law states that a pure chemical compound always contains the same elements which are combined together in a fixed proportion by mass, irrespective of its source, method of preparation or physical state. याद रखो क्या है? जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं
same elements, they are combined in a fixed proportion by mass, definite proportion by mass. याद रखो, एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ तब जाके समझ में आएगा तुम्हें. इधर देखो वाटर का. ओके, वाटर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी इन डिफरेंट वेज. बहुत वेज है वाटर को प्रिपेयर करने के लिए, बट इन एवरी केस द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन. वाटर मतलब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड होते हैं. ओके, तो ये क्या रहता है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो डेफिनाइट रेशियो रहता है, 1:8 रहता है. समझ में आया, 1:8 रहता है. कैसे भी प्रिपेयर करो तुम लोग. इधर देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन का 8 है. अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन का 16 होगा, डबल होगा. फिर से रेशियो 1:8 आएगा. अगर इसका 5 है तो इसका ऑक्सीजन का 40 रहेगा, अगेन 1:8 आएगा. तो रिपीटेडली तुम्हें सेम डेफिनाइट, सेम क्या आएगा, सेम डेफिनाइट रेशियो आएगा, कांस्टेंट रेशियो आएगा. सो इफ वी टेक डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट विल ऑलवेज बी इन द सेम मास रेशियो. देखा ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. सो दिस इज बिकॉज द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज प्राउस्ट लॉ. क्या बोलते हैं इसको, प्राउस्ट लॉ बोलते हैं. वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट. ओके, ये इसका लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. याद रखो. इधर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड. देखो कैसे, no matter how carbon dioxide is prepared, but the combination of carbon and oxygen, it will be in definite ratio, that is always 3:8 रहता है. अगर 3 grams of carbon लिया है और 8 grams of oxygen लिया है तो mass to ratio क्या रहेगा, मास रेशियो 3:8 होगा कार्बन इज टू ऑक्सीजन का. अगर 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन लिया है तो 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे. अगर 9 ग्राम्स ऑफ कार्बन लिया है तो 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा. इधर देखो मैंने वेरीफाई किया है. फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 होता है, सॉरी 12 होता है, 12 ग्राम्स होता है कार्बन का. ओके, एटॉमिक नंबर 6 होता है. एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक मास 16 ग्राम्स होता है. सो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का क्या होगा 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, 2 × 16, दैट इज 12 प्लस 16 2 जा 32, it will be 44 grams. So mass of carbon in carbon dioxide कितना कार्बन है 12 ग्राम्स है. मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम्स है. जब हम लोग दोनों का रेशियो चेक करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का, कितना आएगा 12/16, 4 3 जा 4, 4 जा दैट इज 3:8. कितना आता है 3:8 आता है कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो. समझ में आया, ये है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. अ कंपाउंड हैज़ अ fixed proportion, a fixed composition, and a mixture has a variable composition. So this law helps in analyzing the pure substances. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. देखो व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, वो पहले वाला एक कंपाउंड था, more than 1 compound, the mass of one element that combine with the fixed mass of other element are in simple whole numbers. Mass of fixed mass of, see, the mass of one element that combine with the fixed mass of other element are in a simple whole number ratio. That is, that ratio must be small, like 1:2, 1:1, 2:3, 2:1, 1:3 ऐसे होना चाहिए. ओके, लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स A एंड B. 2 एलिमेंट्स है इधर देखो, एंड इफ A कंबाइंस विथ B टू फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड्स. इधर 2 डिफरेंट कंपाउंड दिया है, देखो कंपाउंड 1 कंपाउंड 2. इधर B के 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर B का एक ही मॉलिक्यूल है या एटम है. तो इधर कंबाइन होके हमें फर्स्ट हमारा AB2 है, दूसरा हमारा AB है. सो लेट द मास ऑफ B विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ A इन द 2 कंपाउंड्स बी M1 एंड M2. M1 और M2 रहने दो, किसका मास ऑफ B का, ये कंपाउंड A में, ये कंपाउंड B में.
Okay, let the mass of B in compound 1 be m1. Let the mass of compound B in let the mass of B in compound 2 be mass m2. तो अकॉर्डिंग टू लॉ हमें क्या पता है, m1 बाय m2, m1 इज टू m2 इज इक्वल टू a इज टू b. समझ में आया? a इज टू b मतलब क्या है, कंपाउंड्स है, वेयर a एंड b दे आर स्मॉल होल नंबर रेशियो. एग्जाम्पल दिया है, देखो मैंने इधर कार्बन मोनोऑक्साइड, दो कंपाउंड है, इधर कार्बन ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है. ओके, तो इधर चेंज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन. लेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, इधर मास क्या है ऑक्सीजन का, इधर मास 16 ग्राम्स है, इधर इसका ऑक्सीजन कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो 2 इंटू 16 होगा, इधर कितना होगा 32 ग्राम्स होगा. तो जब हम लोग इसका रेशियो देखेंगे बी का, कितना आएगा 16:32, दैट इज 1:2 आएगा. ये होगा तुम्हारा सिंपल होल नंबर रेशियो. समझ में आया? नेक्स्ट और एक दिया है, देखो मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का, NO और NO2 सिमिलर वे में, जैसे ऊपर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड किया, सेम वे में ऑक्सीजन किस रेशियो में उधर प्रेजेंट है, दैट इज अगेन 1:2 में प्रेजेंट है. सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स. याद रखो, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. व्हेन वन एटम इट फॉर्म्स 2 or more different compounds. Okay, this law showed that elements combine in fixed ratios at the atomic level. Next आते हैं नेक्स्ट लॉ में, Gay-Lussac's law of gaseous volume. Gay-Lussac's law of gaseous volume. It states that volumes of gases which react together and volumes of gases products all measured under same condition, constant temperature, same pressure रहना चाहिए, bear to one another a simple whole number ratio. इसका मीनिंग क्या है, at same temperature and pressure volume of the reacting gases and products are in simple whole number ratio. एग्जाम्पल देखो, एक रिएक्शन कंडक्ट हो रहा है, ओके एक रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है एट सेम टेम्परेचर, क्या है कंपल्सरी सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर मेंटेन किया है. तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ ammonia. That is, if 10 liter of nitrogen reacts with 30 liter of hydrogen, then how many liters of ammonia you will get? 20 liters of ammonia. ये gaseous volume के लिए. ओके, मेनली ये किसके लिए होता है, ये लॉ गैसेस के लिए होता है, दैट इज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. ओके, वॉल्यूम बताता है हमें एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एम्पिरिकल फार्मूलास. आगे पढ़ेंगे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है. हेल्प्स इन फाइंडिंग द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड. ओके, स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में हेल्प होता है. इट है यूज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन गैस रिक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अननोन वॉल्यूम ऑफ अनदर गैस. इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक हेबर प्रोसेस for production of ammonia, combustion process, and is helpful in understanding gas reactions. Shows the chemical reactions occur in simple ratios, helping us understand and balance the equations. Mainly it is for gases reaction. Okay, the same what should be maintained here, temperature and pressure should be same here. Next आते हैं Avogadro's law. देखो, it states that equal volumes of all the gases, equal volume of all the gases at same temperature and pressure, again same temperature and pressure पे equal volume of all gases contains equal number of molecules. क्या है, equal volume of gases contain equal number of molecules. देखो, equal volume of gases contain equal number of molecules. कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर रहना है, ये मेंटेन करना है. दैट इज एक इलस्ट्रेशन दिया है, देखो मैंने
1 liter of oxygen with 1 liter of nitrogen, 1 liter of carbon dioxide molecules, either n molecules, either n molecules, either n molecules. Okay, at same temperature V1 V2 V3 तीनों इक्वल है तो इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N3. अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा. इसका 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर है तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, वो कुछ भी रहने दो, कौन से भी एटम्स रहने दो. ओके, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इधर ऑक्सीजन इक्वल है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स सारे इक्वल है, मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. Molecules equal है but not the masses. Okay, equal volumes doesn't say that masses are equal because different gases have different molar mass. ऑक्सीजन का मास नाइट्रोजन के जितना नहीं, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम्स है. तो मास इक्वल नहीं रहता है. क्या इक्वल रहता है, मॉलिक्यूल्स इक्वल रहते हैं, याद रखो. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस. दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मॉलिकुलर मास ऑफ गैसेस. It is used in stoichiometric calculations and forms the foundation of mole concept. Explains why 22.4 liter of any gas at standard temperature pressure, STP मतलब देखो standard temperature measure pressure contains same number of molecules. That is 1 mole of any gas. याद रखो 1 mole of any gas occupies 22.4 liters. कितना 1 mole कितना ऑक्यूपाई करता है गैस, अराउंड 22.4 लीटर. फिक्स्ड है ये. ओके, मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस बोलते हैं हम लोग इसको. क्या बोलते हैं, मोलार वॉल्यूम. एंड दिस लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग गैसेस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन. दैट इज PV इज इक्वल टू nRT. P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R रेट और T टेम्परेचर है. ओके, याद रखो. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये है तुम्हारा अवोगाड्रोस लॉ. एंड दिस कनेक्ट्स द वॉल्यूम विथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गैसेस. ओके, सो I will stop it here, and this Dalton's atomic theory I will take in lecture 2. Okay, so if you like my this video, please do subscribe to my channel Class Excellence, and also continue watching for the next lecture series. Thank you.